हेलो एवरीवन नमस्कार समस्ती को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपण स्वागत करुच्ची थर्मल instability is a very common process in case of biomolecules, and in today's topic we are going to discuss about the denaturation and renaturation processes of nucleic acid. So different type of factors रहुची one by one करके से causes मान को discussion करिवा factors मान को discussion करिवा. So we'll start with DNA. So particularly if you go for the DNA, it is a double helical structure. आमे जोटा कि बहुत भल भाव एटा already structural part रे complete करि सारिछि, and both the strands they are arranged anti-parallelly. So इथरे आहुरी बेसी strength बढ़ी जाए दीटा कर interactions में. एवं interactions रे दीटा major bond involved है. One is a base stacking bond, another one is a hydrogen bond. And both of these bond they actually contribute a lot for the stabilization process of DNA. And जदि आम देखा यार कोवेलेंट बॉन्ड, सो सुगर और फॉस्फेट भितर जो हमारा फॉस्फोइस्टर बॉन्ड रोचे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रोचे, दैट इज बेसिकली अ बैकबोन ऑफ डीएनए. तो सिंपली डिनेचुरेशन प्रोसेस कहले कौन बुझा, आम जी सब बॉन्ड्स विषय मेंशन करा जायछि, वी नीड टू ब्रेक दोज बॉन्ड्स. सो सुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स तो ब्रेक हम ना जेहेतु से बैकबोन परिका काम करुच्ची, बट व्हेन इट कम्स टू बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, these bonds need to be broken. And during the denaturation process, what happens, the double stranded helical structures becomes the single stranded structure, and single stranded हेबा द्वारा यार गोटे प्रकार simplification process आपण एठी देखि परिबे. Okay, so simply हमें एटा देखिबा कि what are the different causes or factors that actually facilitates the process of denaturation, and also there are a lot of other concepts are there जोटा कि denaturation process संगे associate हेकि रहिछि. If you look at the causes, so very common cause is temperature, and जेतेबेले temperature रो presence रे DNA simplification हेथे ताको हमें thermal instability बोली कहिथौ. Second point is extreme pH. एक्सट्रीम मतलब सपोज धरि दियंतु बहुत बेसी एसिडिक एनवायरनमेंट हैला कि बहुत बेसी अल्कालाइनिक एनवायरनमेंट हैला, लाइक pH 1 or 2 or 3, these are very heavily acidic conditions, or pH 11 or 12 or 13 or 14, these are very heavy alkalinic conditions. Then lot of organic solvents are there who also contributes for the process of denaturation. Urea is there, lot of ionic strengths can also be applied because of the like जदि आपण विभिन्न प्रकार ionic content apply करूछंती on DNA, because DNA is negatively charged, and if you are applying some positive ions, so that also makes certain changes. And along with that there are a lot of other chemical agents are there, like formaldehyde is there, and lot of other things are there. So आमरो major part रहिबो कि हमें देखिबा कि ए सब कंडीशंस को अप्लाई करके केमिति डीएनए सिंप्लीफाई हेई परिबो. Okay, so first we'll start with the temperature, and in presence of temperature when the DNA gets simplified, that is called thermal denaturation, and the particular temperature at which half of the DNA becomes single stranded. मतलब एटी गोटे आप डायग्राम देखिपे, मुझे गोटे डबल स्टैंडर्ड डायग्राम करिछि, एंड आपको आम सिंपली कौन करवा, जस्ट खाली बुझापी मुझे आड करुचे जिनसटा बुझापी. सो सपोज दिखाते आम 50% ये जगह मुझे गोटे लेफ्ट हाफ आम 50 रहा, राइट हाफ अनदर 50 रहा. तो कह जाऊँगी जो टेम्परेचर रे डीएनए रो 50% सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट हो, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द थर्मल टेम्परेचर, सो मेल्टिंग टेम्परेचर, एंड दैट इज ऑल्सो डिनोटेड एज टीएम. सो ये आप देखिपे सेकेंड डायग्राम रे अधा पार्ट रही डबल स्टैंडर्ड फॉर्म रे, एंड अनदर हाफ इज इन सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म. तो जो कंडीशन रे या फिर जो टेम्परेचर रे ए कंडीशन टी हमको अचीव हो सक्सेसफुल हो आम ये कंडीशंस को पाइबारे, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज द मेल्टिंग टेम्परेचर. And particularly in case of DNA, that melting temperature somehow varies from 70 to 72 degrees Celsius. Okay, so 70 to 72 degrees Celsius, but preferably we take 72 as a melting temperature of DNA. जदि हमें TM को बढ़ेबा आउरी तो obviously हमको बाकी 50% भी simplify हो जिबा, so we'll get the single stranded DNA fully. जदि हमें TM को कम कर देबा तो जो डबल स्टैंडर्ड DNA जोटा सेपरेट है जी, that will again रिनेचर, मतलब कम टेम्परेचर हेले से माने आउ थरे परस्पर संगे बाइंडिंग हेबा स्टार्ट कर देबे. जदि हमें टेम्परेचर को बढ़े चलिबा आउरी ऊपर को, ताहले सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म गुडा आउरी भलो भाबरे डेवलपमेंट हबो.
Okay, so above TM will get single stranded DNA, below TM will get double stranded DNA. So temperature को apply कले separation हबो, जदि हमें temperature को remove कर देबा जहाँ भी separation हेतिबो ताहा सेटा आउ थरे association हेबा start हे जिवो. Okay, so all this is all about your thermal denaturation process. Now thermal denaturation is also very much associated with a particular type of factor जो थी कि हमरा absorbance आसी जाउची. तो देखा गला कि जदि आम डीएनए को सिंप्लीफाई करूचे एंड इफ यू अलाउ दैट सैंपल to pass through the UV radiation at 260 nanometer तो धीरे धीरे करके absorbance बढ़े. तो absorbance बढ़े माने कौन relative absorbance increase हुए along with the simplification of DNA. That means जदि हमें गोटे double stranded DNA नेबा because of the lot of bonds एमानक भितर बहुत बेसी स्टैकिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व रही था, तो एमाने बहुत बेसी लाइट को एब्जॉर्ब करि परिबे नाही. बट इफ यू सिंपली सेपरेट द डीएनए एंड देन यू अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, जेहेतु एटी टिके सिंप्लिफिकेशन हे सारी चे, देन एटी रिलेटिव एब्जॉर्बेंस ए जगह कोन हे जिवो इंक्रीज हे जिवो. आमे आउ टिके टेंपरेचर अप्लाई करिबा तो हमको कंप्लीटली दीटा सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन मिलिबा. देन एट दिस कंडीशन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल आल्सो वेरी मच हायर देन द प्रीवियस वन. याकू जदि हमें ग्राफिकली अप्लाई करिबा, so here is the wavelength at the x-axis and absorbance at the y-axis. So at the 220 nanometer you have you can see the points. एथरे बहुत बेसी बहुत हमर को absorbance high मिलु नाही, but at 260 nanometer you can see the dotted line represents the stacked DNA. Stacked DNA मतलब ए जगह एटा को डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जाउची, जोटी दीटा को स्ट्रैंड परस्पर संगे स्ट्रांगली एसोसिएट हेकि रही छी. And the normal line represents the unstacked DNA. That means when you apply the temperature and the DNA gets simplified, the double stranded becomes the single stranded, the rate of absorption will be higher. And 300 obviously एमाने कौन से प्रकार absorbance शो करती नहीं. So at 260 nanometer if you apply the light on the DNA solution which is being simplifying due to the presence of temperature, then the absorbance rate will be higher. So ए जगह रे एटा ए जो absorbance टा increase करी जाउची due to the denaturation process, that increasing concept itself is known as the hyperchromic shift. Okay, and it happens when you apply the temperature on the DNA. And एठी मध्ये आपण एठी डायग्राम देखि पारुथिबे, टेम्परेचर को एठी इंक्रीज करा जाय छै x एक्सिस रे एंड एब्जॉर्बेंस को y एक्सिस रे मेंटेन करा जाय छै. सो फर्स्ट पार्ट रे जदि आपण देखिबे 60 अराउंड हम पाखरे डबल स्टैंडर्ड डीएनए रही छै, जेमिति हमें 70 पाखरे पहुंची गले हमको हाफ डबल स्टैंडर्ड एवं हाफ सिंगल स्टैंडर्ड मिलिबो. एंड जेमती आमे 70 रे ऊपर को जीवा टेम्परेचर को आहुरी इंक्रीज करी चलीबा, देन वी विल गेट ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके, सो दिस इज हाउ द सिंप्लिफिकेशन एक्चुअली डन. Apart from the TM, there are some other factors are also there जो माने कि DNA को सिंप्लीफाई तो करती ता संगे TM को मध्य इन्फ्लुएंस करती. सो जेमति कि आयोनिक स्ट्रेंथ है गला, GC कंटेंट है गला, देन द pH है गला. आमे स्टार्ट करिबा GC कंटेंट पाखरु. सिंपल कांसेप्ट एटा रहिला जेहेतु G और C भितर तीनोटी हाइड्रोजन बॉन्ड रहउची, तो जेते GC कंटेंट कम रहिबो हमको टेम्परेचर मध्य सेते कम अप्लाई करिबा को पड़िबो. जदि GC कंटेंट बेसी रहउची तो ऑब्वियसली हमको मेल्ट करिबा पे बेसी रु बेसी टेम्परेचर अप्लाई करिबा को पड़िबो. तो एठी GC कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द TM. तो एठी आपण देखि पारुथिबे तीनोटी GC कंटेंट एठी मु रिप्रेजेंट करिछि. सो जदि हमें 35% रे अच्छे G और C कंटेंट तो हमको कम टेम्परेचर दरकार पड़िबो. जदि हमें इंक्रीज करी जिबा GC रो कंटेंट को तो हमको बेसी टेम्परेचर अप्लाई करिबा को पड़िबो, एंड से हिसाब रे हमरा एब्जॉर्बेंस लेवल मध्ये बढ़िबो. नेक्स्ट फैक्टर आसीगला pH. pH जेमती कहा जाउची कि जदि हमरा एक्सट्रीम pH कंडीशन अछि, दैट मीन्स अल्कालाइन pH जदि अछि ताहले एई जगह रे सराउंडिंग रे हमर बहुत बेसी हाइड्रोक्सिल आयन्स मानकर कंसंट्रेशन इंक्रीज हे जिवो. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो सब नाइट्रोजनस बेसेस माने रहि छथि सेई मानक पाखरु हाइड्रोजन टा रिमूव हबो, दैट मीन्स डीप्रोटोनेशन प्रोसेस हबो. एंड जदि हमें एसिडिक pH कहूचे जो जगह हमर pH लेवल 1, 2 एवं 3 पाखापाखि पहुँचुची, एट दैट कंडीशन यू विल गेट लॉट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन द सराउंडिंग. तो ये जगह कौन हम ए माने बेस रे जाकी अलाउ हेबे माने ऐड हे जिवे, तो प्रोटोनेशन प्रोसेस हबो. एक्सेसिव अल्कालाइन
आयोनिक पीएच रे डीप्रोटोनेशन हुए, दैट मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप ये रिमूव हो जिवो। एक्सेसिव एसिडिक कंडीशन रे प्रोटोन माने ऐड हो जिवो, दैट मीन्स हाइड्रोजन ये ऐड हो जिवो। एंड इन बोथ द कंडीशन ए माने कोन करिवे बेस पेयर को डिसरप्ट करिवे, जेमति कि जी आ सी भितर पेयरिंग हला किंबा ए आ टी भितर पेयरिंग हला। जदि हाइड्रोजन रो नंबर एठी इंक्रीज होची किंबा डिक्रीज होची तो एमानकर पेयरिंग रे प्रॉब्लम आसीबो एंड द डीएनए विल स्टार्ट टू डिसोशिएट फ्रॉम, मतलब स्ट्रैंड, बोथ द strands will start to dissociate from each other. Then the next one is ionic strength. Ionic strength is also directly proportional to the TA and याको बुझिबा पई मु टिके फर्स्ट टिके बैकग्राउंड आइडिया दे दोची। तो we have DNA, right? Now DNA रो जहाँ भी फॉस्फेट रही that will present towards the outer environment, तो यहाँ बाहर को रही थी फॉस्फेट ग्रुप गुड़ाक सब बड़े बाहर को रही थी, दैट मीन्स डीएनए रो जो नेगेटिव चार्ज रहिला सेटा बाहर को एक्सपोज होगी रही थी एंड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज एट द बोथ स्ट्रैंड दे ऑलवेज यूज टू रिपेल इच अदर। तो वर्तमान धरि दियंतु दुईटा स्ट्रैंड अच्छी जो मैंने चाहूँगी कि परस्पर सेपरेट होगापी, तो ये आम जब अल्प भी टेम्परेचर अप्लाई करदे देन इमिडिएटली दे विल बी सेपरेट आउट बिकज यहाँ से गोटे एडिशन हो सेपरेट करने। किंतु जदि आम कौन प्रकार पॉजिटिव आयन्स मानक अप्लाई करके नेगेटिव चार्ज मानक जदि आम न्यूट्रलाइज करदेबा, so obviously then the bond or then the strength between both the strand will increase and at that condition we need to apply more amount of temperature and the Tm value will increase। तो से जगह जदि आपण धरि दियंतु हमर डीएनए नेगेटिव चार्ज रही, आम जदि किछि कैटायन्स मानक एठी अप्लाई कर देबा, फॉर एग्जांपल सोडियम हे गला या फिर मैग्नीशियम हे गला, तो एथिरे कोन हबो डीएनए रो नेगेटिव चार्ज माने न्यूट्रलाइज हे जिवे एंड इन न्यूट्रलाइज जदि होचनी ताले से जगह हमको बहुत बेसी टेम्परेचर अप्लाई करबा को पड़िबो टू सेपरेट आउट द डीएनए। सो इफ यू इंक्रीज द आयोनिक स्ट्रेंथ यू हैव टू इंक्रीज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए, बट जदि आयोनिक स्ट्रेंथ कम अच्छी ताहले मेल्टिंग टेम्परेचर हमको कम दरकार पड़िबो एंड फॉर द ऑब्वियस रीजन बिकॉज आयोनिक स्ट्रेंथ कम रहिले बोथ द स्ट्रैंड विल स्टार्ट टू रिपेल इच अदर, जेहेतु सेमिति भी गोटे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगी रही तो अल्प टेम्परेचर रे काम हो। किंतु जदि आयोनिक स्ट्रेंथ बेसी रोचे डीएनए न्यूट्रलाइज हो चार्ज वाइज, तो से जगह हमको बेसी टेम्परेचर अप्लाई करने को पड़ो। एठी आम एग्जांपल नहीं परिबा यूरिया रो, ता सहित आम एग्जांपल नहीं परिबा फॉर्माल्डिहाइड रो मध्य। तो फॉर्माल्डिहाइड को जदि आम अप्लाई करछे जोटा कि हमर गोटे केमिकल एजेंट हिसाब रे काम करूछि एठी, तो केमिकल जदि आम अप्लाई करछे ऑलमोस्ट 95% फॉर्माल्डिहाइड एट रूम टेम्परेचर जदि आपण अप्लाई करूछन देन इट विल इजीली डेनेचर द डीएनए। सेमती जदि आम यूरिया को अप्लाई करूचे ताहले आम टीएम रो वैल्यू को आम टिके कम कर दे परिबा, जेमती कि एठी लिखा जायछि 8 मोलार यूरिया जदि आपण अप्लाई करूछथि देन टेम्परेचर को आम 20 डिग्री लेस कर दे परिबा, टीएम रो वैल्यू जहाँ भी थिबो ताको आम ऑलमोस्ट 20 डिग्री एठी लेस कर दे परिबा। सो इटा हे गला हमर आयोनिक स्ट्रेंथ। नाउ द लास्ट पार्ट इज एप्लिकेशन। सो बेसिकली जदि हमको डीएनए को सेपरेट करिवार अछि ता पछरे तीनोटी मेजर रीजन थाए। एक तो हमको जेनेटिक सीक्वेंसेस को बुझिबार अछि या फिर जीनोम रो साइज को बुझिबार अछि, तार कॉम्प्लेक्सिटी को बुझिबार अछि, किबा कोनोसी जगह जदि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस रही छि जेमति कि डाइन्यूक्लियोटाइड रो रिपीटेशन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड रो रिपीटेशन, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रो रिपीटेशंस, ए सब जिंस रही छि ए मान को बुझिबार अछि। पर्टिकुलरली हमर टेलोमियर रीजन रे रही गला किबा सेंट्रोमियर रीजन रे रही गला हमर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस रा कंटेंट बहुत बेसी थाए। किंबा जदि हमको रिलेटेडनेस देखिबार अछि दैट मीन्स दुईटा अलग अलग एनिमल्स भितर कंपैरिजन करिबार अछि या फिर दुईटा अलग अलग क्लास भितर कंपैरिजन करिबार अछि, सो इन दैट केस वी कैन फॉलो दिस डीएनए डीनेचुरेशन प्रोसेस जोथरे कि हमको बहुत हाई प्रोफाइल इंफॉर्मेशन हमको ऑब्टेन हे परिबो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रोसेस एंड रीनेचुरेशन सिंपल हे परिबो कि जहाँ जहाँ कंडीशन इटी आपण डीनेचुरेशन पे अप्लाई करछन यू जस्ट नीड टू remove out those conditions and if you remove those condition automatically DNA जगह पुन थरे bond formation करके से मन करे reannealing process और आराम से complete हे जिवो। Now DNA part is over, we'll go for the next one that is RNA। आरएनए आमे टेम्परेचर बहुत बेसी से जगह इन्वॉल्व हुए नहीं, माने टेम्परेचर को देले सेते बेसी हमको रिजल्ट मिलिबो नहीं। ता पछे रीजन हला बिकॉज आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड द स्ट्रैंड इज कनेक्टेड बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड रे जेहेतु जाउची तो कम टेम्परेचर रे जेमति हम डीएनए केस रे देखिले सेते कम टेम्परेचर यार किछि सेमति मेजर चेंजेस करिबो नहीं। बट येस certain alkali condition can make a very significant effect on RNA.
सो आरएनए केस रे कौन हुए जदि आम अल्कालाइनिक एनवायरनमेंट दूचे दैट मीन्स अल्कालाइनिक एनवायरनमेंट माने सराउंडिंग रे कौन थी हाइड्रोक्सिल आयन्स माने थिबे सो ये आप देखि पारुथबे मुठी मुठी हाइड्रोक्सिल आयन्स को बनैछि सो हाइड्रोक्सिल आयन्स आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड करेक्ट नाउ नेगेटिवली चार्ज्ड जो रही एठी सो ऑक्सीजन गोटे अटैक करिवो कहा ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर को हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना 2 प्राइम राइबोज रो 2 प्राइम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अच्छे ताऊपर ऑक्सीजन गोटे अटैक करिवो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करिवो सो वर्तमान अटैक जोगु ए जो ऑक्सीजन टी वर्तमान अच्छी हाइड्रोक्सिल रो जो ऑक्सीजन टी अच्छी यार नेक्स्ट एम एटा रहिबो कि से हाइड्रोजन टू सेपरेट है कि आउ कहा संगे बॉन्ड बनेमा पे चेष्टा करिवो वर्तमान सिंपल क्वेश्चन एटा को म आउथर रिपीट करूची हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहिला हम पाखरे हाइड्रोक्सिल रो न्यूक्लियोफिलिक अटैक रहिबो कहा ऊपर तार सराउंडिंग हाइड्रोक्सिल रो हाइड्रोजन ऊपर तो हाइड्रोजन रो इफेक्ट जो हाइड्रोजन एठू सेपरेट आउट हेबा स्टार्ट हबो एंड हाइड्रोजन जते बेले चाहिबो कि मो ऑक्सीजन टू सेपरेट हेबी तो ऑक्सीजन को आउ गोटे बॉन्ड तैयारी करबा निहाती जरूरी हबो तो से कोन करबो तार 3 प्राइम पाखरे जो फॉस्फेट ग्रुप टी अवेलेबल अछि से ता संगे बॉन्ड तैयारी करबा पे आउ गोटे न्यूक्लियोफिलिक अटैक बनेबो फॉस्फेट ग्रुप ऊपर वर्तमान एठी प्रॉब्लम कोन हबो फॉस्फेट जेहेतु केवल 5टी ही बॉन्ड तैयारी करबार कैपेसिटी रखुची जते बेले आउ गोटे नुवा बॉन्ड एठी तैयारी हेबा स्टार्ट हबो तो ऑटोमेटिकली याको करबा को कोन पड़िबो गोटे बॉन्ड कोठू भांगीबा को पड़िबो निहाती बाबरे 6टा बॉन्ड को तो से मेंटेन करके रखि परिबो नाही 5टा बॉन्ड ही मेंटेन हे परिबो तो जेहेतु गोटे नुवा बॉन्ड एठी फॉर्मेशन हेबा को ट्राई करूची तो तार गोटे एक्जिस्टिंग बॉन्ड को गोटा को भांगीबा को पड़िबो तो से कोन करिवो गोटिए ईस्टर बॉन्ड को एठी कोन करिवो ब्रेक कर दबो ठीक अच्छे जिते गोटे ईस्टर बॉन्ड ये ब्रेक हो जाऊँगी नाउ द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड माने जो ऊपर तो गोटे रहा न्यूक्लियोसाइड एंड तले जो न्यूक्लियोसाइडटा अच्छे से सेपरेट आउट हो ठीक अच्छे तो ये सेपरेट आउट हो गला आप देखिपे आम पाखे ये 2 प्राइम रहा आम पाखे ये 3 प्राइम रहा 3 प्राइम सांगे ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप अटैच था एबे देखो 2 प्राइम रो भी गोटे बॉन्ड बनी जाइए फॉस्फेट सांगे तो आपको आम कौन कहबा ये 2 प्राइम 3 प्राइम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट ओके गोटे फॉस्फेट ग्रुप रहा साइक्लिक फॉर्म रे रही एटा सो 2 प्राइम 3 प्राइम न्यूक्लियोसाइड साइक्लिक मोनोफॉस्फेट ये हम तो जेहेतु 3 प्राइम रे पूर्व ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुपटा लगी बर्तमान 2 प्राइम रो अटैक जो ये 2 प्राइम संगे अटैच हो गला सो जेहेतु दीटा 2 प्राइम एवं 3 प्राइम कार्बन बर्तमान गोटे साइक्लिक मैनर रे फॉस्फेट ग्रुप संगे अटैच होगी रही तो ताको आम 2 प्राइम 3 प्राइम न्यूक्लियोसाइड साइक्लिक मोनोफॉस्फेट बोली कहबा एंड तलपट पार्ट रे हमको केवल गोटे न्यूक्लियोसाइड मिल जिवो जोटा कि ईस्टर बॉन्ड रो ब्रेकेज द्वारा सेपरेट हो गला संपूर्ण रूपे वर्तमान जो 2 प्राइम 3 प्राइम साइक्लिक मोनोफॉस्फेट आपण एठी देखुछथि फर्दर इट कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ईदर एंटायर फॉस्फेट केवल 2 प्राइम संगे अटैच होगी रहिबो किंबा एंटायर फॉस्फेट केवल 3 प्राइम संगे अटैच होगी रहिबो बिकॉज दिस इज अ वेरी ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर तो एटा बहुत अनस्टेबल फॉर्म रे थाए किछि टाइम पर एटा भांगी जिवो ईदर 2 प्राइम रो भांगिबो नहले तो 3 प्राइम रो भांगिबो जदि से 2 प्राइम रो भांगुची ताले हमको ये 2 प्राइम संगे आपण देखि परुथबे होल फॉस्फेट ग्रुपटा अटैच होगी रहिछि जदि से 2 प्राइम रू भांगी कि केवल 3 प्राइम संगे लागि के रहउछि देन 3 प्राइम संगे हमको फॉस्फेट ग्रुप टी मिलिबो तो ए जगह ना को आम आउथरे चेंज कर दे परिबा जदि 2 प्राइम रे लागुछि देन 2 प्राइम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट जदि 3 प्राइम रे लागुछि देन 3 प्राइम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोली कहआ जिवो एंड एट कंडीशन टा सेते बेले अप्लाई हेबो जेते बेले आपण गोटे अल्कालिक एनवायरनमेंट देबे सिंपल जिंस अल्काली एनवायरनमेंट हला माने आम पाखे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रो कंसंट्रेशन बढ़िबो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तार सराउंडिंग हाइड्रोजन को स्कैवेंज करबा पे चेष्टा करिवो सो दैट कि वाटर रे कन्वर्ट हो जिवो एंड जदि सराउंडिंग हाइड्रोजन जदि रिमूव हो जाउछि तो से हाइड्रोजन टा जो ऑक्सीजन संगे अटैच हेकि थिबो से ऑक्सीजन आउ को संगे गोटे बॉन्ड तैयारी करबा पे चेष्टा करिवो तो ये फॉस्फेट ग्रुप अछि जे कि ताको से प्लेटफॉर्म टा प्रोवाइड करे सो जेतले फॉस्फेट संगे गोटे नुवा ऑक्सीजन बॉन्डिंग तैयारी हबो तो गोटे प्रीवियसली एक्जिस्टिंग जे कोन से गोटे बॉन्ड को ताको भांगीबा को पड़िबो तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड को से भांगी देबो ठीक अच्छे तो यहीटा रहा आमर आरएनए रो डिस्टेबिलाइजेशन प्रोसेस बट ये टेम्परेचर प्रेजेंस रे हुए ना दिस इज मोस्टली अल्काली कैटालाइज्ड प्रोसेस जदि आम अल्कालाइनिक एनवायरनमेंट इंक्रीज है तेबे जाइए प्रोसेस हमको देखा मिले तो वर्तमान पूरा आमर डिस्टेबिलाइजेशन प्रोसेस न्यूक्लिक एसिड सरी जाइए या भितर जब कौन क्वेश्चंस रहा तो कमेंट सेक्शन रे आपण क्वेश्चन मेंशन कर दे पारे मु चेष्टा करी कि सॉल्व करने न्यूक्लिक एसिड बाकी जिनस आप जानवा चाहते डीएनए स्ट्रक्चर जानवा चाहते फंडामेंटल्स जानवा चाहते साइलेंट फीचर्स विषय बेसी क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहते देन यू कैन फॉलो द अदर वीडियोस व्हिच हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड इन द चैनल सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय